صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ صنعت کار ایس ایم منیر سے دیرینہ رفاقت تھی، ہمیشہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب کہتے ہیں کہ ایس ایم منیر کا کراچی کی مٹی میں مدفون ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کاٹی کے ہونے والے تعزیتی اجلاس کا احوال بتا رہے ہیں حبیب خان اپنی اس رپورٹ میں۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں سرپرست اعلیٰ کاٹی مرحوم ایس ایم منیر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ ایس ایم منیر کے تینوں بیٹوں سمیت کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ منیر بھائی جان سے 25-26 سال پرانی رفاقت رہی۔ انہوں نے آخری وقتوں تک بچوں کی طرح خیال رکھا۔ میرا تعلق میرا خیال ہے کہ کوئی 26-27 سال کے قریب ہوگا، جب سے میں نے یہ سیاست میں قدم رکھا 1994 میں، اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ایس ایم منیر صاحب سے رابطہ میرا رہا، اور یہ مستقل رہا، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، اور انتہائی ادب و احترام کا تعلق تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ایس ایم منیر کا لاہور شفٹ ہو جانے کے باوجود بھی کراچی کی مٹی مدفون ہونا ہمارے شہر کے لیے اعزاز ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے، کاٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے، یو بی جی سے، اور جو فیملی ان کی یہاں پر موجود ہے، تنویر صاحب، عمران صاحب، آپ سب سے تعزیت کرنا چاہوں گا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ایس ایم منیر کے بڑے بیٹے ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ بابا کو کراچی، یو بی جی اور کاٹی سے بہت پیار تھا، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ لاہور جانے کے باوجود ہر ہفتے کراچی آتے تھے۔ کاٹی اور یو بی جی تو ان کی جان تھی، اس کے علاوہ تو وہ بات نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو شفٹ کیا لاہور میں کہ اب وہ لاہور میں آ جائیں، ساری فیملی وہاں پر ہے، بٹ ہم ان کو لاہور رکھ نہیں سکتے تھے۔ 10 دن 15 دن زبردستی، وہ بھی ہم کبھی دبئی لے جاتے تھے، لنڈن لے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو کراچی، تو ابو جی کراچی کیا کرنا ہے، فلاں نہیں کراچی۔ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نامور لیڈرز کا کہنا تھا کہ ایس ایم منیر کے مشن کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ منیر بھائی جان کے جانے سے لگتا ہے کہ جیسے باپ کا سایہ چلا گیا ہو۔ بہت اعزاز ہے اس بات کا کہ 34 سال کا میرا ان کا ساتھ رہا، اور ایس ایم تنویر نے جیسے کہا، ایس ایم تنویر آپ کے اور آپ کے بچوں نے نہیں، ہم نے بھی بہت ڈانٹیں سنی ہے۔ جب فون بجتا تھا بھائی جان ایس ایم منیر یا دین ہاؤس، تو اٹھانے سے پہلے سوچتے تھے کہ کیا کام دیا تھا اور نہیں کیا، یا کیا بھنڈ مارا ہے، کس پہ پڑنے والی ہے، اور جب نہیں پڑتی تھی تو ہم شکر ادا کرتے تھے کہ نہیں، کچھ نہیں تھا، لیکن بہت سیکھا ہے۔ یہ جو اہم پہلو جو میں نے دیکھا کہ ہم چیمبر میں، وہ ہمارے اپوزیشن گروپ میں تھے، لیکن مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی مجھے فون کرے بغیر رہا ہو کہ کیا ہے، کچھ بات سنی، کچھ اور بات کی، کیا ہوا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ سی ای او ٹی ڈاپ زبیر چھایا اور کراچی چیمبر کے صدر طارق یوسف نے بھی ایس ایم منیر کی تعزیت کی۔ کہا کہ مخالف گروپ میں ہونے کے باوجود بھی منیر بھائی نے ہمیشہ معاونت کی۔ ایس ایم منیر کے انتقال پر بزنس کمیونٹی افسردہ ہے، جس کا کہنا ہے کہ ایس ایم منیر کا خلا کوئی بھی پر نہیں کر سکتا۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ ممتاز صنعت کار ایس ایم منیر مرحوم کے گھر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بن گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر احسن اقبال کی مرحوم کے گھر آمد، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی احسن اقبال کے ہمراہ تھے۔ ایس ایم منیر کے اہل خانہ سے اظہار رنج و غم فاتح خوانی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری بھی پہنچ گئے۔ تینوں صاحبزادوں ایس ایم تنویر، ایس ایم عمران اور ایس ایم عرفان سے تعزیت کی۔ ایس ایم برادران، ایس ایم نصیر، ایس ایم جاوید، ایس ایم پرویز، ایس ایم طارق اور پرویز موجود تھے۔ امان اللہ عثمان منظور سمیت تاجروں، صنعت کاروں کی بڑی تعداد بھی وہاں پر موجود تھی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی سطح عوام پر گیس بم گرا دیا گیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر 139 روپے مہنگا ہو کر 2548 کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 535 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ نئی قیمت 9804 روپے مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں اضافے پر رکشہ ڈرائیور اور عوام حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں اب کرائے بڑھنے کے ساتھ غریب کی جیب پر بوجھ مزید بڑھے گا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی تو مہنگائی سے پریشان عوام کا صبر بھی جواب دے گیا اور حکومت پر طنز کے تیر برسا دیے۔ شہری کہتے ہیں آٹا دالیں تو مہنگی تھیں، اب پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کے لیے بھی جیب پر بوجھ پڑے گا۔ بھائی جان ہر چیز مہنگا ہے، کیا چیز مہنگا نہیں ہے؟ سبزی مہنگا ہے، آلو مہنگا ہے، پیاز مہنگا ہے، کرایہ مہنگا ہے، ہر چیز مہنگا ہے۔
कोई गुजारा नहीं हो रहा है किसी का। अब यहाँ से हम सिविल जाते हैं, रिक्शा वाला बोलता है 100 रुपये दे दो। अब ये 50 रुपये का कभी सफ़र नहीं है। अब महंगाई के लिए क्या करें, हम किससे बोलें, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल पहले ही महंगा था, अब एलपीजी में इजाफे से वो किराया बढ़ाने पर मजबूर होंगे, जिससे गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा। मसला ये है, पहले पेट्रोल पे गाड़ी थी, हमने एलपीजी थोड़ी सस्ती थी, एलपीजी लगा ली थी, चलो गुजारा बसर हो रहा था। अब लाजमी तो 12 रुपये एलपीजी पे बढ़ गए आज। अब उन्होंने रात को ऐलान हो जाता है तो सुबह ही बढ़ जाते हैं पैसे। अब जब लाजमी हमें महंगी मिलेगी, हम भी किराया महंगा करेंगे तो गरीब आवाम तो पीछे कौन बैठेगा, कौन, और परेशान लोग हो जाएंगे। ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के लिए एलपीजी 11 रुपए 79 पैसे फी किलो महंगी होकर 215 रुपए 95 पैसे की हो गई है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा काविश T21। कोरंगी चकरागोट में गैस और बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। कहते हैं हुकाम को शिकायत भी की हैं, कोई हमारी बात सुनने को लिए तैयार ही नहीं है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी के चक्रा गोट वाले इलाके में मौके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गैस की जो लोड शेडिंग है वो मामूल बन गई है। गैस के साथ साथ बिजली की भी जो लोड शेडिंग है उसके हवाले से भी शहरियों को कहना है कि दिन और रात दोनों औकात में जो है वो बिजली भी जा रही है। ये मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि किस वक्त जो है गैस की लोड शेडिंग हो रही है और किस वक्त पर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग तो यहाँ बहुत हो रही है बिल्कुल, और दिन में तो गैस है ही नहीं यहाँ पे। रोज़ के मामूल के हिसाब से अगर देखा जाए, लाइट तो इस वक्त भी नहीं है यहाँ पे, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। 8 से 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और इसके अलावा गैस तो दिन में होता नहीं है। लोग खाना नहीं पका पा रहे सही से, बाहर से लोग गरीब आवाम कहाँ जाए, होटल से लेके आ रहे हैं और होटल से ही मंगवा रहे हैं सब कुछ, घर पे तो कुछ पका नहीं सकते। लोड शेडिंग का देखा जाए तो रात 9-10 बजे के बाद लाइट होती नहीं है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आती है। यहाँ पे मच्छर अलग और लोड शेडिंग अलग, गैस का अलग मसला, बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने कुछ शिकायत की है गैस की लोड शेडिंग के हवाले से? क्यों गरीब तबका यहाँ रहता है? जी शिकायत तो बहुत की है, लेकिन कोई उस पर नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है, उस पर कोई ले ही नहीं रहा। उस पर जिसके पास जा रहे हैं लेके कि यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ गैस नहीं है यहाँ पे आ रहा, तो हर कोई बस टाल रहे हैं हमें बातों में कि हाँ ठीक है हो जाएगा, डिले हो रहा है लेकिन टाल रहे हैं हमें। बिल्कुल, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका कहना है कि यहाँ पर न सिर्फ गैस की लोड शेडिंग हो रही है बल्कि उसके साथ साथ बिजली की भी जो लोड शेडिंग है वो भी हो रही है। उनका कहना है कि उन्होंने हकाम को जो है इस हवाले से आगाह भी किया, से कोई भी जो है नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। कि कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट मंसूबे भी अदम तवज्जुही का शिकार हैं। 2 माह से फ़ाल ऑरेंज लाइन बस स्टेशन की बड़की सीढ़ियाँ ख़राब हो गईं। बीमार और बुजुर्ग अफराद के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना इम्तहान बन गया। शहरी सीढ़ियों की मरम्मत ना होने पर फट पड़े। कहते हैं जब से बस चली है एलिवेटर चलते देखा ही नहीं। चला ही नहीं इन्होंने, और ये पुल जो बनाया है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को, इसलिए ये बहुत करीब बोर्ड ऑफिस तक जा रहा है। ये आगे तक निकालते तो उसमें बहुत फ़ायदा होता, आवाम को भी सहूलत मिलती, समझो ना। ये तो पैसा ज़ाया करने वाली बात है आवाम का। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में हरियाली का फ़रोग चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। वसाइल में रहते हुए शहर के पार्क तेज़ी से आबाद कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। जब टैक्स इस्लाहात के लिए काम करता हूँ, हाफिज़ नईम मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के पार्क्स की रौनकें बहाल करने के लिए सरगर्म हैं। बोट बेसन क्लिफ्टन में वाजिद शमसुल हसन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मसाइल के हल के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। जब भी वो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं तो हाफिज़ नईम उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये फैसला जो है पार्टी की क़यादत भी करती है और कराची की आवाम भी करेगी कि वो किसको मेयर देखना चाहते हैं, किसको डिप्टी मेयर देखना चाहते हैं, किसको चेयरमैन वाटर बोर्ड देखना चाहते हैं। ये कराची की आवाम कानूनी तरीके से इसका फैसला करेगी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनका कहना था कि हमने शहर को संवारने की कोशिश की है। आवाम को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जिनका विजन और मकसद शहर की बेहतरी हो। तो हाफिज़ नईम रहमान को आजकल मुर्तज़ा वहाब फोबिया हो गया है, मैं ये समझता हूँ। मैं तो इस तरह की जायज़ नाजायज़ वाली बात नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं इस तरह की तुर्श ज़बान का इस्तेमाल करूँ। ना मेरी सियासी तरबियत देती है और ना कराची का माहौल इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। कराची के लोग तो बड़े शाइस्ता हैं। मुर्तज़ा वहाब और नजमी आलम ने पार्क के इफ्तिताह के मौके पर बास्केटबॉल भी खेली और खेल को एंजॉय किया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। साथ ही उन्होंने इमरान खान को असेंबलियों में वापसी की दावत भी दे दी है।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान तबाह हाल हैं। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की बात करना सैलाब ज़दगान की तौहीन होगी। सिंध का मुतालबा है अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर हो। 11,000 मेगावाट नई कैपेसिटी खड़ी की पावर की, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज मुल्क के अंदर तामीर की है। तो 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो उनकी दुनिया की फोरकास्ट थी, कि इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर पाकिस्तान 2030 तक टॉप 20 इकॉनमीज में आ जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि हमने मुस्तकबिल तामीर करने का फैसला किया है, तभी बिजली के मंसूबे और 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई। सिंध सूबे का सबसे बड़ा मुतालबा है कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होना चाहिए। जब अप्रैल में नई मरदमशुमारी आएगी, उसके बाद हल्का बंदी के लिए 4 माह 5 माह दरकार होंगे। तो ये आप देखिए फितरी तौर पे टाइम टेबल अक्टूबर 2023 तक चला जाता है। तो लिहाजा किसी किस्म की ना बेयकीनी है, ना मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है। अगला इलेक्शन अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह होगा। मैं आपको तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। एहसान इकबाल ने तहरीक इंसाफ को दोबारा असम्बलियों में आने की दावत देते हुए कहा कि मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि कर्जों से निजात का एक ही रास्ता है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना होगा। कैमरामैन हारिस के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कराची या लंदन में जो प्रॉपर्टी है उसके लिए सोचा जाए कि शोधा, लापता और दीगर जुल्म के शिकार अफराद की कैसे मदद की जाए। मजीद कहा कि तहरीकी साथियों को बताना चाहता हूँ कि मेरी गवाही को बागौर सुना जाए। 2020 में MQM पाकिस्तान की जानिब से लंदन प्रॉपर्टी केस मैंने दायर किया था। MQM बाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का लंदन में MQM की जायदादों के हुसूल के लिए अदालती जंग से मुतालिक बड़ा रद्द अमल सामने आ गया। अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि प्रॉपर्टी केस में मेरी गवाही को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। झूठ पर मबनी बातें और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता हूँ कि बहुत सारे तहरीकी साथियों ने, बहुत सारे कारकुनों ने एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ शुरू कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि तहरीकी साथियों को बताना चाहता हूं कि जब लंदन में प्रॉपर्टी केस दायर किया जा रहा था तो इसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं ही था। कि मेरा फौरी रद्द अमल ये था कि MQM पाकिस्तान को लंदन की अदालत में ये केस दायर नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो ये, मैंने मीडिया के रिकॉर्ड पर यह बात मौजूद है कि मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि आप पहले अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करें। साबिक मेयर कराची बोले कि MQM पाकिस्तान ने मेरी बुनियादी रुकनियत 2018 अक्टूबर में ख़त्म कर दी थी। इस मुकदमे से मेरा कोई लेना देना नहीं था, बल्कि MQM पाकिस्तान के आइन के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा रहूँगा। कैमरामैन कमर आबदी के साथ ताबिश मीर, सिटी 21। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज HIV एड्स से बचाव और आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आगाही के हवाले से CVU पर वॉक का एहतमाम किया गया। डॉक्टर्स ने पाकिस्तान में एड्स फैलने की बड़ी वजह सिरिंजेस का गलत इस्तेमाल को करार दे दिया। पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में हौलनाक इजाफा। एड्स के आलमी दिन की मुनासबत से CVO मैकडॉनल्ड से CVU पार्क तक पीस वॉक का इनकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में NGOs, एड्स स्पेशलिस्ट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर CDC HIV एड्स डॉक्टर अरशाद काज़मी का कहना है, पाकिस्तान में एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद की जानिब से सिरिंजों का गलत इस्तेमाल है। खवातीन नाक कान की पर्सिंग वगैरह कराती हैं। इसमें एक ही आला अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो भी ये वायरस एक से दूसरे तक मुंतकिल हो सकता है। HIV पॉजिटिव होना ऐसा है जैसे कोई हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है, क्योंकि HIV भी एक वायरस है। तो एक तो ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। दूसरा, ये कैसे लगता है ये जानना ज़रूरी है। इस मुल्क में ट्रांसमिशन का जो मोड है सबसे अहम वो है जो नीडल है कंटामिनेटेड। ख़ासकर वो लोग जो मुनशियात इस्तेमाल करते हैं, जो सिरिंज के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए नशा करते हैं,
वो है। पाकिस्तान में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,10,000 हो गई है। रवां बरस जनवरी से नवंबर तक कराची में 970 मरीज रिपोर्ट हुए। प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिसर CDC HIV एड्स डॉक्टर सबा का कहना है कि कराची में पीस वॉक का मकसद है कि लोग इस मर्ज को जानें। आखिर एड्स क्या है? ऐसा नहीं है इसका इलाज नहीं, इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। इस वॉक का बेसिकली मकसद ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि HIV जो है वो अब जिस तरह उसको एक्चुअली लोग HIV को नहीं जानते, एड्स को जानते हैं। तो एड्स से पहले HIV होता है, इट्स जस्ट अ वायरस, और ये अगर किसी को हो जाता है तो वो इंसान भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द लाइफ टाइम कंटिन्यू करें। डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को चाहिए एक बार एड्स का टेस्ट लाजमी कराएं। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा राबेल अशरफ, City 21। सदर में ज़ेरे ज़मीन वाक़या न्यूयॉर्क सबवे सेंटर 1971 से अवामी गुज़रगाह के साथ कारोबार का मरकज़ बना, जहां ऑडियो कैसेट्स और कैलकुलेटर की दुकानें थीं, लेकिन आज ये गुज़रगाह यादगारी शील्ड की तैयारी और फ़रोग़ का मरकज़ बन चुका है। सदर में वाक़ अब्दुल्ला हारून रोड के नीचे मौजूद अवामी गुज़रगाह न्यूयॉर्क सबवे सेंटर है। 1971 में KMC ने ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह पर 10 दुकानें बनाकर ऑडियो कैसेट और कैलकुलेटर फ़रोख्त करने वालों को किराए पर दी। पहले शॉप्स नहीं थी, सिर्फ रास्ता बना हुआ था, तो यहाँ पे गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिर 10 शॉप बना दी, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ, 10 शॉप है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑडियो कैस्टों का जो ज़माना था, बड़ा उरूज का ज़माना था, 1974 के बाद यहाँ पर ऑडियो कैस्टों की मार्केट बन गई फुल, और उसमें तकरीबन 3 दुकानें जो थी वो कैलकुलेटर्स की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ स्टील, लकड़ी और कांच पर यादगारी शील्ड्स बनाई जाती हैं। इसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स पहले कंप्यूटर पर डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर मशीन के ज़रिए मतलूबा अशिया पर कुंदा या नक्श करते हैं। कंप्यूटर पर डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद मशीन में जाती चीज़ें, चाहे वो शीशे की हो या लकड़ी की हो। शील्ड की बात हो रही है अभी अवार्ड की। उसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, फिनिशिंग होती है। उसके बाद हम डब्बे में बॉक्स भी मांगते हैं, बाज़ कस्टमर जो आपने देखा होगा गिफ्ट बॉक्स आता है, उसमें डाल के फिर हम कस्टमर को। दुकानदारों का कहना था कि जदीद मशीनों के बाइस अब काम करना इंतहाई आसान हो चुका है। 1-2 दिन का प्रोसेस होता है हमारा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। पहले टाइम लगता था पुराने ज़माने में, अब तो चीज़ें आ गई, मशीनरी आ गई, तो फटाफट काम हो जाता है। दुकानदारों का कहना था कि शहर की दीगर अवामी मकामात को भी मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल में लाकर कारामद बनाया जा सकता है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा शुमाइला नियाज़ी, City 21। शहर में एक और फूडी स्ट्रीट का इजाफा हो गया। कराची के चिड़ियाघर में फूडी स्ट्रीट तैयार हो गई। जनवरी से शहरी खुलकर मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर सकते हैं। कराची वालों के मजे हो गए। तुर्किश तर्ज की छतरियों के साए तले बनाई गई फूड स्ट्रीट कराची चिड़ियाघर में तैयार की गई है। फूड स्ट्रीट जनवरी से आवाम के लिए खोल दी जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर कराची जू आबिदा रईस कहती हैं 21 दिसंबर से नए साल के आगाज तक आवाम को राग़िब करने के लिए फूड गाला फेस्टिवल कराएंगे। इसके बाद फूड स्ट्रीट मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खुल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की काविशों के बाइस ये मुमकिन हो सका। कराची वालों को तफरीह के साथ साथ अच्छा खाना भी मुयस्सर आएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब की काविशों से इसको हमने तामीर किया है और बहुत खूबसूरत है, और कराची चिड़ियाघर आने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। इस सिलसिले में हम कराची ज़ू की इंतज़ामिया ने 21 दिसंबर से और दिसंबर के आखिर तक के लिए यहाँ पर फैमिली फूड गाला की जो है वो इनेकाद किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि कराची के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके जो भी फूड स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं उनसे महसूस हों, इनको एंजॉय करें और जो है कराची चिड़ियाघर की खिदमात को सराहें। जनवरी में फूड स्ट्रीट से शहरी अपनी मर्जी के खानों से लुत्फ अंदोज होंगे। शहरियों का कहना है कि ये एक अच्छा इकदाम है, शहरी इसका ख्याल रखें। यही उम्मीद है कि कराची के हवाम यहाँ पर आएंगे और इसको एक पुरपज़ा मकाम बनाएंगे और कराची के लोग इसका ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो लिखे पढ़े तबकात का शहर कहा जाता है, तो उनसे वही उनकी बुनियाद पर इनकी यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ और इनका दिफा करना चाहिए। चिड़ियाघर में कायम फूड स्ट्रीट शहरियों के लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया साबित होगी। जरूरत इस अमर की है कि शहरी अपने लिए बनाई गई चीजों की हिफाजत करें और गंदगी फैलाने से गुरेज करें। कैमरामैन मुताहिर के हमरा आदिया नाज, City 21।